Hello, Assalamu alaikum. Welcome to another episode of the Pakistan Experience. This is the first time that a LUMS professor that was teaching at LUMS while I was there is on our podcast. So I'm quite honored and privileged to be talking to Sir Asim Sajjad today. Hi, sir. How are you doing? I'm fine. You've taken me back a long way. I don't really think of myself as a LUMS professor anymore. सर आजकल आप कायदे आज़म यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं आई हाँ हाँ, थिंक बिल्कुल। आज से 10 साल पुरानी बात अब हो चुकी है। सर आप तो मुझे भी अब बुढ़ा फील करा रहे हैं बिकॉज मुझे अपने यूनिवर्सिटी के दिन याद आ रहे हाँ, हैं तो फिर अगर तुम्हारा ये हाल है तो मेरा सोचो फिर क्या होगा। But I mean, I was unfortunate enough to not take your course. But मुझे मुशर्रफ का टाइम याद है कि आप की फायरी स्पीचेस होती थी. आई थिंक इट डिड अ लॉट टू मोबिलाइज एन एंटायर जनरेशन एटलीस्ट लम्स के हमारे बबल में. आपको याद हो एक दफ़ा आपको दीवार भी कूद के आना पड़ा था हमें स्पीच देने के लिए. हाँ हाँ, बिल्कुल याद है। एंड it's very gratifying actually to see so many of you, people who were students who were politicized during those years. So yeah, that counts as one of my fondest sort of, in some ways, memories of LUMS. So does that time, specifically Musharraf and his emergency, is that also a marker in your political reawakening or mobilization, या आप उसको इतना बड़ा अपनी पर्सनल ज़ाती ज़िंदगी में इवेंट नहीं देखते? I mean, इवेंट तो बड़ा था और अहम था, लेकिन मेरी सियासी जिंदगी तो खैर उससे पहले शुरू हो चुकी थी. um, I think it was a big event, if only because it brought home to me even that prior to that, मतलब मेरी अगर मैं पाकिस्तान के तनाज़र में देखूं कि मैं 1999 में पढ़कर वापस आया था, तो उस वक्त से लेकर 2007 तक जब ये वाक़या हुआ या जब ये तहरीक चली, तो उन 7-8 सालों में मुझे मतलब शायद इस चीज़ का एहसास भी नहीं था उस पैमाने पर कि really what we now need to do is build for the long run, and we need young people to buy into a new narrative of politics, of progressive politics. So I think in that sense that movement was very important because it sort of it clarified for me personally that we now, this is something that we can do, and it's happened to an extent, and we need to build from here. सर आपकी किताब में भी यू टॉक अ लॉट अबाउट ज़ियाउल हक. अनफॉर्चुनेटली जब हम पॉलिटिकल हिस्ट्री की बात करते हैं वी डोंट टॉक इनफ अबाउट द मिलिट्री डिक्टेटर्स. लाइक इवन अगर इमरान खान पावर में आ रहे हैं तो वो कहेंगे कि जी 20-25 साल से ये दो पार्टियां चोर 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 कर रही हैं, which almost feels like a revisionist history क्योंकि PMLN PPP तो नहीं इतना रूल में रही जितनी एक इदारा रहा है. Mhm. So how hurtful do you think is to our understanding or our political understanding of the country that we have these discussion devoid of discussing the period where one institution has had the most power? Look, it's hurtful is an understatement, right? It's not even about hurtful or not. It's just about how we choose, and having taught Pakistan studies for so many years, that's what you come up against. You come up against young people at the age of whatever, entering adulthood, 18, 19, 20 years old, और उनको अपने मुल्क की तारीख के बारे में कुछ पता ही नहीं होता. And this is deliberate. This is far beyond the question of कि मेरे सियासी नज़रियात क्या हैं या मैं क्या चाहूँगा कि लोग. This is simply about being informed, being equipped, being able to understand your own society, your own history. और जब आप फौज को उस कहानी में से निकाल देते हैं, फौज की हुक्मरानी अपनी जगह, लेकिन फौज बहैसियत मजमूई या generally speaking the militarized nature of our history, of our society, of our state, तो साफ जाहिर है आप बहुत कुछ ना समझ सकते हैं. एंड therefore आप जैसे पीटीआई की अब हवाला दिया तुमने, then you sort of buy into these narratives as if something new is really happening when really it's just a regurgitation of the same cycle that we've had many times before. हाँ, आई थिंक जो भी हिस्ट्री पढ़ता है वो रियलाइज करता है कि प्लेबुक भी नहीं बदलती. You'd think कि once we've been tricked by one trick before we would be wise to that.
बट प्लेबुक वही चलती आ रही है। तो अभी करंट पॉलिटिकल लैंडस्केप आप कैसे देखते हैं? डू वी हैव अ क्वाज़ी डेमोक्रेसी? डू वी नॉट इवन हैव अ फसाड ऑफ डेमोक्रेसी एनी मोर? अभी हम कहाँ पर खड़े हैं? Yeah, look, the playbook, एक तरफ एक हवाले से तो you're right, you know, that it's true, right? That you have basically a dominant political force, and then you have sort of B teams and people who are out there. I wouldn't even necessarily, हमारा अलमिया ये है कि हमारी जो सियासी जमातें भी हैं वो उसकी आप बहुत लंबी तारीख पीछे तक नहीं खींच सकते कि एक मुनज़्ज़म जमात है, मतलब मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ जमातों से छलांग मार कर दूसरी में चले जाते हैं, चूँकि यू नो दे लुक फॉर कौन सी किसके सर पे हाथ रखा जाएगा फौज की तरफ से। तो वो तो ठीक बात है कि दैट्स द सेम ओल्ड प्ले बुक, बट आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड एंड आई थिंक I think this is something that a lot of young people probably, I hope, can relate to, again, irrespective of whether we agree on the kinds of politics we need in this country. कि इमरान खान और पीटीआई का बहरहाल एक कुछ फर्क से मैं इसलिए कहूँगा कि there's a new generation of young people who have been, you know, for instance, since 2007. So 2007 की तहरीक में इमरान खान was still a small player, right? और उस वक्त आप देखें कि नौजवानों की बहुत बड़ी तादाद में लोग उसकी तरफ गए, because they did buy into that idea that this is different. And there was something about this newer generation, digitally tech savvy, sort of not necessarily just going to reproduce the alignments or choices of their parents. So it's a mix of old and new. And I think in thinking through what might come next, I think it's important to really understand कि ये जो इमरान खान या पीटीआई वाली बात है, इसमें नया वाला पहलू कौन सा है, विदाउट इंसिस्टिंग कि वो तब्दीली का जो नारा है, विद रिकग्नाइजिंग इन फैक्ट कि तब्दीली का नारा तो इज एन आई वॉश, बट देयर सोशियोलॉजिकली सपोर्ट बेस में सियासत के तर्ज और तरीके में थोड़ा फ़र्क ज़रूर नज़र आता है, एंड आई थिंक दैट्स इम्पोर्टेंट टू रिकग्नाइज मूविंग फॉरवर्ड। सर एग्जैक्टली अगर आप थोड़ी वजाहत कर दें कि क्या फ़र्क नज़र आता है ना, इवन फ्रॉम द क्रिएशन ऑफ पीटीआई जो आप बात करें, मोबिलाइजेशन ऑफ यूथ, उस टाइम हम दुनिया में भी देख रहे थे, तहरीर स्क्वायर हो रहा था, अरब स्प्रिंग की बातें की जा रही थी। तो डू यू थिंक एक खदशा था कि पाकिस्तान में भी इस तरह की यूथ मोबिलाइजेशन हो सकती है, सो रादर देन एन ऑर्गेनिक मूवमेंट इरप्टिंग, आप नहीं, बस ऑर्गेनिक, अपने ही बंदे के अंडर थोड़ा सा प्रेशर कुकर में रिलीज दे दो ताकि ऑर्गेनिक मास पीपल्स मूवमेंट ना बने यहाँ? हाँ हाँ, वो खैर, वो तो अब अलमिया ये है पाकिस्तान की तारीख में कि जब कोई बड़ी तहरीक चलती भी है तो उसको मैनिपुलेट, जैसे हमने शुरू में बात की थी कि वो किस तरह किया जाता है, वो, और वो महज सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं। यू मेंशन द अरब स्प्रिंग, आई मीन लुक एट द ट्रेजेडी ऑफ व्हाट्स हैपेंड इन इजिप्ट, राइट? कि इतनी बड़ी तहरीक, 30 साल की एक आमरीत को उन्होंने मतलब गिरा फेंका, और अब होसनी मुबारक क्या, वो जो फौज का तसल्लुत और ज़्यादा सख्त तरीन शक्ल में कायम हुआ है। सो देयर आर, इट्स नॉट जस्ट इन आवर कंट्री दैट यू कैन सी कि पीपल्स होप्स आर रेज्ड एंड देन दे कम क्रैशिंग डाउन. That's not purely about manipulation. That's about the fact, as you say, partly it's the fact कि जो जिस हद तक 2007 में जो हुआ था वो एक, मतलब बहुत, आप ये नहीं कह सकते कि समाज भर की तहरीक थी। एक तो ये भी तो एक देखना पड़ेगा ना कि पाकिस्तान की तारीख में एक तो फौज का एलिमेंट है, दूसरा एलिमेंट ये है कि हमारा जो एक कौमी शनाख्त का जो मसला है ना, कि हम एक कहते हैं कि हम एक हैं, हम एक नहीं है। आप इवन 70 के इलेक्शन देखें, जब सबसे मतलब एक वाइब्रेंट शक्ल में कुछ सियासत हुई, जमहूरियत की बात आप कह सकते हैं कि मतलब निस्बतन एक ज़्यादा ऑर्गेनिक थी, तो बिल्कुल दो हिस्सों में मुल्क तकसीम था। एक एक दो सूबों ने एक तरफ वोट डाला और दो सूबों ने दूसरी तरफ वोट डाला। सो वी आल्सो हैव एन एथनिक डिवाइड इन आवर कंट्री व्हिच इज डिफिकल्ट टू ब्रिज, at least unless we acknowledge it exists. So yes, the 2007 period was an opening. Like I said earlier, it gives us a sense, for me it gave us a sense that look, नौजवान अब इस आबादी के लिहाज से भी देखो ना, 65% of the population is under the age of 25 or so, right? So all I'm saying is that that's who we need to focus on. We need to understand that this now young generation learns and thinks and sees its politics through the digital, which is new. That's what I meant when I'm saying new means and
methods of politics. And if we are able to sort of outline के मतलब what are the building blocks जिनके जरिए हमने एक नया narrative बनाना है, तो कम से कम इस कड़वे तजर्बे से कुछ हमें सीखने को तो मिल सकता है. आपने सर 70 की भी बात की एंड हमारा डिस्कशन एक रिविजनिस्ट हिस्ट्री से ही शुरू हुआ था. अभी जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो की डेथ एनिवर्सरी भी आ रही थी तो बड़ा डिस्कशन हो रहा था कि 71 में जो हुआ है उसका सारा ब्लेम कन्वीनियंटली हमारी हिस्ट्री बुक्स में या एटलीस्ट हमारे ऑनलाइन प्रोपेगेंडा में जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दरवाजे पे छोड़ दिया जाता है. एंड इट्स अ वेरी क्लीन कट, समझें आसान एक एक्सप्लेनेशन मिल जाती है पूरे मुल्क को कि भाई क्यों हुआ, क्योंकि जुल्फ़िकार अली भुट्टो पावर हंगरी थे. तो इस तरह उनको जो पेंट किया गया है, आपकी क्या राय है? हाँ यार, I mean, on the one hand, this is the standard story, right? जो हवाला शुरू में दिया गया कि एक ही इदारा है, एक ही ताकत है, एक ही मुल्क को बचाने वाला एक निजात दहिंदा है, और सियासत और सियासतदान फजूल ही, चाहे उनमें फ़र्क भी हो, चाहे उनकी खूबियाँ खामियाँ जो मर्जी हो. So in that sense, that's a standard narrative and applies to Bhutto as much as anybody else. I think the Bhutto factor is also important to bear in mind कि भुट्टो, जुल्फ़िकार अली भुट्टो या पीपल्स पार्टी से हटकर उस दौर की जो सियासत थी ना, रोटी कपड़ा मकान, इनकलाब, पूरी दुनिया में पाकिस्तान समेत बड़ी बड़ी तहरीकें, मजदूर, किसान, तलबा, वो तर्ज सियासत एस्टेब्लिशमेंट के लिए, सरकार के लिए बड़ी खतरनाक थी. तो as a result, the memory of that politics is something even till today which is toxic for the establishment or for dominant elites in Pakistan. तो इसलिए शायद भुट्टो को कुछ ज़्यादा ही पोलराइजिंग फिगर है. लेकिन सियासत बहैसियत मजमूई के साथ यही हशर होता है, चाहे किसी तर्ज की भी सियासत हो. हम छोटे मोटे बाएं बाजू के ऐसे सियासी कारकुन या जमातें जो कोई जानता भी नहीं है, हमारे लोग भी मतलब छोटी मोटी बात पे गद्दार कहला जाते हैं, राइट? सो ये एक कंसिस्टेंट पैटर्न है. रह गई बात भुट्टो की या 70-71 में उसके रोल की, उसके अपने, I don't like to think about politics in terms of individuals as much as I think about, sort of larger structuring forces. But look, he was a larger than life figure, right? And a very, very savvy, conscious, politically aware man that saw in 1967 कि अब अयूब खान की कहानी खत्म होने जा रही है, दुनिया में इनकलाबी तहरीकें चल रही हैं. He modeled himself as a man of the people, and he was successful in doing so. He had many faults, he made many blunders, he undermined the social base that brought him to power after coming to power. ये भी सारी कहानी का हिस्सा है. So history is never just monocausal, there's multiple causes. But of course I agree कि 71 की जहाँ तक बात है, मशरकी पाकिस्तान की बात है, तो who was in power, who made the decisions, फौज कशी किसने फैसला किया, इक़्तिदार मुजीबुर रहमान को किसने नहीं दिया, उसमें कोई भुट्टो शुट्टो का हाथ नहीं था. उसमें सीधा सीधा याया खान और इस्टेब्लिशमेंट का ही मेन किरदार है. तो हमारी जो पाक स्टडीज़ का कैनन है उसमें भी तो एक कोशिश होती है ना कि बहुत क्रोनोलॉजिकल हर चीज़ समझाने की कोशिश करें या एक साइज़मिक इवेंट की तरह समझाने की कोशिश करें. तो इवन जब 71 का जिक्र आता है वो 71 तक लिमिटेड होता है. वी नेवर रियली टॉक अबाउट कि 47 से 71 में हमने किया क्या वहाँ पर विच लेड टू 71 हैपनिंग. वी जस्ट कन्वीनियंटली थिंक एक इंसान ने कुछ बुरा किया और बस जंग हो गई और इंडिया इन्वॉल्व हो गया, वी हैव दिस इनविजिबल ह्यूज एनिमी, सब उसकी गलती है. तो in terms of just our experience in 71, 47 से 71 में क्या क्या हुआ था जिसकी वजह से 71 हुआ है? Well, I mean, ये किसी हद तक अगेन अगर इंसान की रसाई हो तो इस पे मवाद तो मौजूद है. ये अलग बात है कि हमारे सरकारी निसाब में इसको बिल्कुल गोल कर दिया जाता है. But there's a fair amount of literature that establishes I mean, for me, I'll never get tired of saying this. हम वाहिद दुनिया की रियासत हैं जिसमें एक अक्सरियती आबादी ने मुल्क छोड़ने का फैसला किया. मुल्क टूटते हैं,
एथनिक माइनॉरिटीज़ सिसीड करती हैं, लेकिन बंगाली 53% आबादी बंगालियों पर मुश्तमिल थी। उनको 48 से लेकर अपनी ज़बान बोलने पर बंगला, सरकारी महकमों में नुमाइंदगी तक, वहाँ के एग्रीकल्चरल क्रॉप्स स्पेशली जूट के एक्सपोर्ट अर्निंग्स के को मगरबी पाकिस्तान में सनत लगाने के लिए इस्तेमाल करने तक, फ़ौज में नुमाइंदगी तक, देयर इज़ अ लॉन्ग प्लेथरा ऑफ grievances. And as I said earlier, this 71 तक तो बंगालियों के साथ ये मतलब बंगाली were sort of the more obvious sort of ethnic group that felt aggrieved and rightfully so. 71 के बाद ये मज़ीद वाज़े हो गया कि बलोचों के साथ भी यही है, सिंधियों के साथ भी एक हद तक यही है। पश्तून अब जो कौम है, स्पेशली पीटीएम की शक्ल में, उन्होंने एक नए अंदाज में, नए सिरे से जो स्टेट का नैरेटिव है और जंगजू यानी कि पॉलिसियां हैं, उस पर एक रद्द अमल आया है। तो ये एक पुरानी कहानी है और अफसोस से ये कहना पड़ता है कि 75 साल होने जा रहे हैं और जो कुछ बंगालियों के साथ हुआ, जो कुछ आज से 40 साल 50 साल तकरीबन अगले साल हो जाएंगे, there's been very little learning to date. बहुत क्लीशेड बात है कहना, बट वही मुहावरा जो है कि दोज हु डोंट लर्न फ्रॉम हिस्ट्री आर बाउंड टू रिपीट इट। मैं जर्मनी गया था, वहाँ हाई स्कूल एक्सचेंज था हमारे, एक आई वाज वर्किंग एट हाई स्कूल इन कराची, उनके साथ हाई स्कूल के बच्चों को इतना पढ़ाया जाता है कि दिस इज़ व्हाट हिटलर डिड, दिस इज़ व्हाई इट वाज रॉन्ग। इतना उनके दिमाग में डाल दिया जाता है दैट होपफुली दुनिया में और जहाँ भी राइज हो, जर्मनी में एटलीस्ट फैशिज्म फिर मुश्किल है, इवन दो देयर कपल ऑफ रैलीज हैव हैपेंड रिसेंटली। तो कितना बड़ा मसला है कि हम अपनी तारीख सीखते ही नहीं हैं और सही तरीके से सिखाते नहीं हैं। खैर, जस्ट टू पॉइंट आउट, आई मीन अनफॉर्चुनेटली ज़रूरी नहीं है कि अगर आप तारीख बहुत अच्छी तरह से सीखें भी तो you will eliminate that possibility. एटलीस्ट देयर इज अ नेशनल Yeah, no, कॉन्शियसनेस अराउंड absolutely. इट। I'm not suggesting that it's not important. I think it's essential. And you give yourself the best possible chance of avoiding massive blunders. Um, but look, like I said earlier, I mean, I think अगर आप तारीख देखें, हमारी तारीख में तो, you're asking me about 47 onwards. हमारी तारीख के भाई आप कहाँ से शुरू करेंगे? हमारी तारीख तो जंप करती है ना। मतलब 712 में मोहम्मद बिन कासिम आया, फिर 400 साल गैप होकर फिर अचानक महमूद और गजनवी आकर और कोई मतलब इस्लाम का किला अगला कायम कर लेता है। फिर डायरेक्ट जाकर जंप आप 1857 में मारते हैं, फिर सर सैयद आ जाते हैं, और फिर कोई मजीद 40-50 साल बाद इकबाल और जिन्ना आ जाते हैं और पाकिस्तान बन जाता है। like that's how emaciated our understanding of history is. आप अंदाजा करें कि 200 साल पर और आज तक हमारे रियासत, हमारे समाज पर यानी कि अंग्रेज की हुकूमत के असरात इतने गहरे हैं, और आप अगर ये पूछें कि पाकिस्तान क्यों बना, बस यही है कि जी हिंदू मुसलमान को खा रहे थे। भाई वो जो 200 साल तक अंग्रेज यहाँ पे हुक्मरानी करता था, उसका तो जिक्र खैर तक नहीं होता। सो our history is, it's a bad excuse for history. And mind you, we're not the only country. I mean, look at the classics, for instance, like Howard Zinn. Howard Zinn's book, The People's History of the United States. मतलब वो यही बताता है ना कि जो सरकार एक तारीख अपने बाशिंदों को ठूंसता है ताकि वो सवाल ना करें, ताकि वो उनकी तनकीदी जहनी सलाहियत ना उभरे। मतलब आज तक अमेरिका में जिस 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 दिन को याद किया जाता है कि ये अमेरिका के बनने का एक की अलामत है, थैंक्स गिविंग, राइट, टू गिव थैंक्स, जी जी, वो एक्चुअली नेटिव अमेरिकन पॉपुलेशन का जेनोसाइड का एक की अलामत है। सो तारीख की बहुत, who tells history, what how they tell it, and generally speaking, the victors always write history. And a modern nation state always writes the history, so that it writes it in its own way so as to suppress alternative narratives. बट थोड़े बहुत जेस्चर्स भी जब होते हैं नेशनल लेवल पर,
वो एटलीस्ट इंडिकेट करते हैं कि यार सोच बदलने की ज़रूरत है। जिस तरह आपने थैंक्स गिविंग की बात की, अब एक बहुत ज़्यादा उस पर डिस्कशन अमेरिका में होता है, कोलंबस डे। इवन दो अभी ट्रंप ने आकर वापस, जिस तरह ट्रंप हैं सब हैप्पी कोलंबस डे मनाएं, Yeah. उस पर भी इतना डिस्कशन हो रहा है कि इसको इंडिजिनस डे करें, Yeah. जस्ट टू रिवाइज देयर ओन हिस्ट्री। इवन दो कोलंबस उनकी हिस्ट्री में एटलीस्ट एक ऐसा इंसान है कि जिसने डिस्कवर किया। आई डोंट नो कि एक जगह जहाँ पर ऑलरेडी इतने लोग रहते हैं वो डिस्कवर कैसे हो सकती है, Yeah. ये तो एक लंबा डिस्कशन है। बट फॉर इंस्टेंस ऑस्ट्रेलिया ने कुछ साल पहले एबरिजिनी से एक ऑफिशियल अपॉलॉजी की थी। Correct. Correct. सो इवन जो छोटे मोटे जेस्चर्स होते हैं कि यार इवन अगर पाकिस्तान एक्नॉलेज कर ले कि यार हमने गलत किया था बांग्लादेश में या कुछ किया था, even they might go a long way, even if they don't change the national consciousness, at least एक राह तो निकलेगी उस तरफ जाने की। Not even, Shahzad, there would be massive, because you see what it means that officially we are acknowledging, we are recognizing, we are owning up. Um, we haven't even owned up to to what, right? Until recently, we used to talk about a lot, was the fundamental, big, huge blunder of disastrous consequences for our own society and for the entire region and for the world at large. Not just us, of course, alongside America and Saudi Arabia and much of the so called free world, of the politics of jihad. अभी तक हमारे नौजवान इस पे कंफ्यूज्ड हैं कि जो आज के दहशतगर्द को हम पिछले 15 साल से कह रहे हैं कि मार रहे हैं और वो मर कर ख़त्म नहीं होते, एज इफ कि वो कोई दरख्त के पर पत्ते हैं जो मतलब उगते रहते हैं, तो उनका, और जो 80 की दिहाई में पूरा एक मतलब एक यहाँ पे नौजवानों को एक ख़ास अंदाज में पढ़ाया गया, सिखाया गया, गनें पकड़ाई गई, ये हमें, यू सी, सो this is a constant reproduction of bad policy and destructive policy. So it's not even. This is enormous. If you, for instance, said कि हाँ भाई पाकिस्तान के तारीख में एक वाक़या हुआ जब बंगालियों, जो मशरकी पाकिस्तानी थे, मतलब उनके साथ एक जुल्म ज़्यादती हुई और हम उसका अजाला करते हैं, तो ये एक छोटी मोटी बात नहीं होती. um, I don't foresee that, unfortunately, happening anytime soon. Um, but of course, bear in mind these things often happen because society के अंदर एक awareness बढ़ती है, and so we can't say, well, the state will do it. No, people like us, people like you, people like me, and as I said, when we started, people like you, I'm sure, I don't want to make any assumptions, but let's say the young people I came across as students at LUMS, many of them didn't think the way they do now. They learned, right? They understood, for any number of reasons, whether it's exposure to people or different narratives, के actually जो हम सीखते हैं, पढ़ते हैं घरों से लेकर स्कूल तक, मीडिया से जो हम सुनते हैं, actually कहानी इससे मुख्तलिफ है. And that has always been the case throughout history, कि चंद लोग होते हैं, वो बात कहीं से शुरू करते हैं, वो चैलेंज करते हैं डोमिनेंट नैरेटिव को, and maybe some decades later, everything looks different and is understood differently, and we have to keep trying to make that the case in our country as well. तो ये जो एक काउंटर नैरेटिव है, ये मुझे समझ नहीं आता ये इतना पाकिस्तान में मूविंग सैंड्स पर क्यों रहता है। जिस तरह इमरान खान की अगर हम बात करें, फॉर अ लॉन्ग वाइल उनको तालिबान खान कहा जाता था, और जो लेफ्ट है वो रो रहा होता था कि भाई तालिबान आपके असासे नहीं हैं, ये गुड तालिबान बैड तालिबान डिस्कशन ख़त्म करें। एंड देन APS हैपेंड, एंड देन अ वॉर अगेंस्ट तालिबान हैपेंड, एंड देन ऑल ऑफ अ सडन द एंटायर कंट्री दैट इनको असासे कहती थी, इनको ज्वाइन करती थी पोस्ट 9/11, एक यूथ का लार्ज पोर्शन गया है अफगानिस्तान जिहाद करने भी। अब वही इनके अगेंस्ट लड़ रहे थे और एक नेशनल नैरेटिव चेंज हो गया था। एंड नाउ दैट दैट हैज सबसाइडेड अ लिटिल, एंड अब अमेरिका रिट्रीट अफगानिस्तान में सोच रहा है, we're back on the track of thinking of Taliban as our friends and our असासे। Yeah. तो इवन रिसेंट हिस्ट्री, चले हम 47-71 लोग जिंदा नहीं थे, ये तो मैं 5-10 साल की हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, और पोजीशंस 180 चेंज करके वापस 180 चेंज करके वहीं आ जाते हैं, एंड वी आर जस्ट सिटिंग देयर थिंकिंग लाइक ये कैसे हुआ। Well, look, I mean, ऐसे हुआ because, in comparison to you and me, your podcast, I mean, I salute people like you, who do this because you're trying, right? You're trying to
to bang that 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 dead horse that nobody seems to be interested in thinking about. But in what I'm trying to say is कि हम थोड़े हैं और हम हमारी रसाई वो नहीं है. हम मैस मीडिया और स्टेट के उन इदारों और उस निसाब और आजकल के ज़माने में जो आप देख रहे हैं कि मजहबी इदारों का रवैया, उससे हम उस पैमाने पर मुकाबला नहीं कर सकते. राइट? हम हमारी वो रसाई नहीं है, पहुंच नहीं है. Which is why I said to you earlier, I think we also have to, and now in the digital age, we try and generate countering narrative, like a real counter narrative, not this like, मतलब जो मौसमी परिंदे वाला जो narrative है. But like I said, there's dominance, and dominance is, my favorite thinker basically puts it very simply, Gramsci. Basically, dominance is not just because आप किसी के सर पे डंडा मार के उसको मजबूर करते हैं. Long-term dominance is developed, or long-term sort of a system of domination survives because उसकी जो नजरियाती जो बुनियादें हैं वो इतनी गहरी हो जाती हैं और लोग उसको खुद रिप्रोड्यूस करते हैं, नौजवान इन पर्टिकुलर. तो इसलिए पॉलिटिक्स मेरे नज़दीक एक, हमारे लिए, हमारे जैसे मुल्क के लिए, हमारे जैसे हालात में रहने वाले लोगों के लिए, एक के लिए पार्टली दैट्स व्हाट आई एम सजेस्टिंग इज वी नीड टू थिंक अबाउट इट एज अ लॉन्ग टर्म एंडेवर, टू थिंक कि आज से अगर हम शुरू करेंगे और मुख्तलिफ, क्योंकि मुझे लगता है ना कि समाज के अंदर जहन साजी बहुत सारी जगहों पे होती है. सिर्फ हमारे तालीमी इदारों में, मीडिया में, मजहबी इदारों में, घर में भी तो होती है. घर से तो हमारी बुनियादी तालीम शुरू होती है, जहाँ पे हमारे माँ बाप, हमारे बड़े जो है ना, हमें ख़ास तरह की एक तरबियत देते हैं. तो इसलिए ये बहुत एक गहरा और यानी कि इसको समझना ज़रूरी है. और ये जो एक दफ़ा कोई एक बंदा उस गार में से निकल आता है और वो समझ जाता है, तो फिर उसका एक तरह से ज़िंदगी का मकसद यही बन जाता है कि वो और ज़्यादा इस समझ को फैलाए. बट इट्स हार्ड वर्क बिकॉज लाइक आई सेड we are competing against a very big behemoth, and it's multi-pronged. It's a hydra-headed elite. एलिगरी ऑफ द केव की आप बात कर रहे हैं, जो फिलोसोफर का काम होता है. जो आपने किताब भी लिखी है पॉलिटिक्स ऑफ कॉमन सेंस के बारे में, तो अभी जो आप कह रहे हैं कि जी एक हेजेमनी ऑफ पावर, एक डोमिनेंस है, ये भी कहा जाता है कि पाकिस्तान में जो भी गलती होती है हम फ़ौरन ज़िया पे इल्ज़ाम डाल देते हैं कि सब ये था. तो ये कितना सच है कि ज़ियाउल हक वाज़ द वन हु रियली entrenched it into the minds of the common masses? कंट्रोल तो हमेशा से वहीं पे था, बट जिस तरह कलोनियलिज्म पहले था, उनको ज़रूरत नहीं थी कि आम इंसान के भी दिमाग में ये घुसे. तो how much did Zia entrench that and solidify the mosque and military connection, and कितना हम अब तक भुगत रहे हैं उसका? नहीं, अव्वल तो देखो, एक बात तो ये कि ज़रूरत तो हर हुक्मरानी के निज़ाम की होती है. देखो, जब बादशाह होता था ना ज़माना कदीम में, तो बादशाह भी यही चाहता था ना कि हर उसका रियाया उसको खुदा की नेमत समझे या खुदा का नायब समझे. फ़र्क सिर्फ ये कि जदीद दौर में, और जितना हम जदीद दौर में आगे बढ़ते चले गए, रियासत के या हुक्मरानों के पास वो एक्चुअली मवाद या तरीके बढ़ गए हैं कि वो हर बंदे के जहन साजी डायरेक्टली करे. और अब तो विद द मैस मीडिया एंड विद द डिजिटल टेक्नोलॉजी, लिटरली दैट इज ट्रू. राइट? अगर आप अंग्रेज़ों के दौर में देखें, तो अंग्रेज़ के आने से पहले यहाँ पे हर कुएं कुदरे में थाना कचहरी नहीं था. राइट? अंग्रेज़ों ने आकर वो भी बना दिया. तो ये वक्त के साथ साथ हर हुक्मरान की ख्वाहिश है कि हर बंदा मुझे पसंद करे, हर बंदा मुझे अच्छा कहे, हर बंदा मेरी टीसी करे. ज़ियाउल हक की बात, ज़ियाउल हक की आमरीत इसलिए अहम है. And I'll have something to say about the fact that next door in India, Modi is now able to do what Ziaul Haq would only wish for, because he has more technology and more means at his disposal. But Ziaul अल्लाह का Haq, शुक्र है ज़ियाउल हक 2020 में नहीं आए फिर. हमें well, I mean, शुक्र, sadly, हमें जल्दी अजियत मिल गई. हाँ, मतलब यस एंड नो, क्योंकि अल्लाह ही जानता है कि आगे आने वाले कल कौन सा अगला आएगा और कैसा होगा. लेकिन मकसद कहने का ये कि ज़ियाउल हक के दौर में ये ज़रूर हुआ कि एक ख़ास, एंड माइंड यू, ज़ियाउल हक के दौर से पहले शुरू हो चुका था कि वो 71 जब हुआ, तो ये जो पाकिस्तान स्टडीज़ है मिसाल के तौर पे, ये एक ऐसा
ख्याल था जो उस वक्त उभरा कि अब मुल्क टूट चुका है, तो अब हमने कैसे एक नए सिरे से अवाम और नास के अंदर एक यूनिफाइड नेशन का तस्वर कायम करना है। तो वो ज़ियाउल हक के दौर में सिर्फ ये हुआ कि साफ ज़ाहिर है उसमें सिर्फ ज़ियाउल हक और पाकिस्तानी हुकूमत या फ़ौज की बात नहीं थी, वो एक आलमी उसका तनाज़र भी था ना कि अफ़गानिस्तान में जंग हो रही है, अमेरिका ने भी आकर ज़ियाउल हक के सर पे हाथ रख दिया, सऊदी अरब ने उधर से इदारे बनाने के लिए पैसे भेज दिए, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। सो इट वाज लाइक अ कंजंक्चर जिसमें बहुत सारी यू नो आप कह लें कि दुनिया के हुक्मरान इकट्ठे होकर उन्होंने ये एक मौका फराहम किया या उस पॉलिसी को तकवीत दी कि आपके निसाब को रीराइट किया जाए, आपके मीडिया में ख़ास नैरेटिव दिया जाए, आपके सोशल मोर्स को, औरतों और बच्चियों को एक ख़ास मतलब एक उनकी बॉडीज़ को डिसिप्लिन करना और उनकी मोरालिटी को बिल्कुल एक तरह से पुलिस करना। एंड फॉर मी ऑल्सो वेरी इम्पोर्टेंटली सियासत के उस मैदान में उस तस्वर को चैलेंज करना और उस तस्वर को क्रश करना कि लोग, आम लोग, गरीब लोग, मेहनत कश लोग, मजलूम लोग इकट्ठे होकर मिलकर हुक्मरानी का निज़ाम बदल सकते हैं। ज़ियाउल हक के दौर में फॉर मी मोस्ट क्रूशली दैट वाज द कॉमन सेंस दैट वाज इंस्टीट्यूटेड कि नहीं, कुछ भी नहीं बदलने वाला, बस कोई बड़ा तलाश करो, उसकी टीसी करो, उसको रिश्वत दो, उसको सिफारिश करो कि वो तुम्हारा मसला एक ज़ाती जैसे एक पैटर्न नहीं होता कोई बड़ा जो आपकी मदद करता है, वो सियासत का मतलब और सियासत की को बिल्कुल महदूद कर दिया गया। और ये तस्वर कि हम मिलकर इकट्ठे होकर कोई ऐसा निज़ाम बना सकते हैं जिसमें हमें किसी बड़े से जाकर मिन्नत मांगने की ज़रूरत ना पड़े, दैट फॉर मी वाज one of the primary legacies of the Zia regime. सो अगेन वही बात है कि अगर हम तारीख में बताएंगे ही नहीं और पूरी कौम को लगेगा कि जी लायन एक इस्लामिक लायन थे ज़ियाउल हक, तो इवन अफगानिस्तान ही गॉट लकी मोर देन एनीथिंग एल्स, एंड वी कैन क्रिटिसाइज अ लॉट ऑफ द डिसीजंस ही मेड उस दौरान भी, बट right man, well, not the right man, but right place at least he was in to exploit that, and मुशर्रफ के साथ भी वही हुआ। तो कि वही वी ऑलवेज गो बैक टू कि यार कितना ज़रूरी है कि हम बताएं तो लोगों को कि जी असल ज़ियाउल हक की हिस्ट्री क्या थी। इवन राइट नाउ मोहम्मद हनीफ साहब की किताब जब उर्दू में छपी तो वो भी बर्दाश्त नहीं हो सका था, उसके भी पब्लिशर को जाके अरेस्ट कर लिया कि नहीं, इवन तो वो बहुत सालों से पब्लिश हो चुकी है। सो इवन राइट नाउ पीपल लाइक ज़ियाउल हक या हमीद गुल जो हिस्ट्री हैज़ प्रूव्ड देम रॉन्ग, उनके बारे में भी बात नहीं की जा सकती, तो आजकल के लोगों के बारे में कैसे ही बात की जाएगी? या आई मीन खैर आप ज़ियाउल हक तो खैर वो अल्लाह को प्यारा हो ही चुका था, इक़्तिदार से ज़बरदस्ती छीन लिया गया इन दैट सेंस, बट मुशर्रफ की तो ताज़ा ताज़ा कहानी है, एक वाजे एक एक और हमारी अदालतों के बारे में पता भी नहीं चलता कौन सा फैसला अच्छा और कौन सा बुरा होगा, लेकिन एक ऐसा फैसला जो कि तारीख साज था कि भाई वाकई इसने आर्टिकल 6 की खिलाफ वर्जी की है, और सजाए मौत वाली बात से तो खैर मुझे चाहे जो भी होगा इस तरफ इख्तलाफ है, बट द फैक्ट दैट ही वाज चार्ज्ड और फाउंड गिल्टी राइट ऑफ ट्रीजन अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, उसके बारे में हम खाक नहीं कर सके, कुछ बोल नहीं सके, कुछ रोक नहीं सके, या उसको बाहर जाने से उस वक्त भी ना रोक सके जब अभी फैसला बाकी था, और जब फैसला हो चुका था तो वापस बुलाने का तो सवाल नहीं पैदा होता। सो ये तो खैर दिस देन गोज बैक टू व्हाट यू स्टार्टेड ऑफ फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, दैट देयर इज अ डोमिनेंट institution, and not just an institution. When we talk about an establishment doesn't just mean कि एक इदारा या एक बंदा है, it means शाह से ज्यादा वफादार भी तो बहुत है ना, जो शाह का काम करते हैं, जो शाह के ख्यालात को आम करते हैं, जैसे मैंने कहा ना मीडिया में, तालीमी इदारों में, मजहबी इदारों में, जो जो उस तस्वर को, उस रियासती नज़रिए को फैलाते हैं, ये एक पूरा एक चाल है। और एज यू से नॉट जस्ट ज़ियाउल हक, आई थिंक ज़ियाउल हक इज़ अ क्रूशल जंक्चर, बट पाकिस्तान की तारीख में, और एंड आई वुड आर्ग्यू के तालिब इल्मों के लिए, नौजवानों के लिए बहुत कुछ समझने के लिए सिर्फ पाकिस्तान के बनने से नहीं शुरू होता, पाकिस्तान के बनने से पहले भी
कि रियासत क्या थी जो अंग्रेज़ों ने कायम की, ये थाना कचहरी ये क्या था, ये क्यों कायम हुआ, इसका क्या मकसद था, आज तक हमारे बहुत सारे कवानीन अंग्रेज़ दौर से क्यों चले आ रहे हैं, क्यों नहीं तब्दील हुए, राइट। सो ऑन सो आजकल हम देखते हैं ना कि लॉकडाउन के नाम पर कभी कभार कोई वर्दी वाला खामखा गरीब आदमी को फेंटी मारता है, राइट। तो ये तस्वर पुलिसिंग का, ये तस्वर अवाम, आप अंदाजा करें ना, आप खुद खुद उस लफ्ज को देखें, सरकारी मुलाजिम, राइट। मतलब जी। मुलाजिम किसके मुलाजिम, अवाम के मुलाजिम, सही है। हमारे यहाँ तो उलट है ना, बेचारे अवाम तो कोई सरकार के बंदे को, छोटे मोटे को भी देखते हैं तो उसको कहते हैं माई बाप, तू तो मेरा सरकार है, राइट। यानी कि उल्टा तस्वर है ना। प्रिंसिपली तो the state should be answerable to the people, but it's not, because it's fundamentally a colonial state, it's a colonial entity, और colonial इदारे और colonial रियासतें, colonial कवानीन का मकसद ही कुछ उस तरह का नहीं था। मतलब ये नहीं है कि अंग्रेज़ों की रियासत या गोरों की रियासत या अमेरिका की रियासत जैसे हमने थोड़ी देर पहले की थी वो बहुत आला है, लेकिन इवन तसव्वुराती तौर पर, अगर आप तसव्वुराती तौर पर समझना चाहते हैं कि पाकिस्तान में क्यों इस तरह की चीज़ें आज तक चली आ रही हैं, तो आई थिंक द फर्दर यू गो बैक इन हिस्ट्री द बेटर इक्विप्ड यू आर टू अंडरस्टैंड these realities. Do you feel Modi has obviously undone a lot, but India moved away from the British legacy a lot sooner and अपने इवन आम इंडियन में एक इंडियन आइडेंटिटी इंट्रेंच करने की कोशिश की, वेराज पाकिस्तान में हमारी डोमिनेंट आइडेंटिटी यही है कि हम इंडियन नहीं हैं या हम हिंदू नहीं हैं। स्पेसिफिकली वी डोंट रियली, जिस तरह आपने भी बात की कि एक एथनिक डाइवर्सिटी है और उसको फोर्स किया जा रहा है टुगेदर अलॉन्ग एन आर्टिफिशली मेड बॉर्डर, एक इमेजिन्ड कम्युनिटी बनाकर कि हाँ हम एक मुल्क हैं, वेराज मे बी कोई एक इंट्रिंसिक यूनिफाइंग फोर्स नहीं थी। तो इस्लाम कहा जाता है, बट उसमें भी अगर आप आई मीन इंडिया में ज़्यादा मुसलमान Yeah, हैं, वेयर वी हैव डिफरेंट एथनिसिटीज़ एंड एवरीथिंग। yeah. तो हम जानबूझ के वो ब्रिटिश लेगेसी से दूर नहीं गए, बिकॉज एक सर्टन तबका था हु थॉट के नाउ वी आर द न्यू ब्रिटिश एंड देव जस्ट स्टेड इन पावर सिंस देन। Yeah, I mean, look, इसमें तो कोई शक नहीं ना कि हिंदुस्तान में और पाकिस्तान की पोस्ट 47 ट्रजेक्टरीज में फर्क है, और है, और उसको अंडरस्टेट नहीं किया जा सकता है। वहाँ की एक बहरहाल अच्छी बुरी जमहूरियत का कायम होना, सियासी हुकूमतों का मुसलसल रहना, सिवाय इंदिरा गांधी के उस 2 साल की इमरजेंसी के दौरान, जनरली वहाँ के डेमोक्रेटिक कल्चर का ज़्यादा डीप होना, in terms of like freedoms of expression and so on. But India also has its share, has its share of problems. To be Indian also excludes certain ethnic minorities, and not just Kashmir, which is the one we always think about. जी जी But the Northeast, जी। India has also had नक्सलाइट मूवमेंट है वहाँ पर, दलित्स का मसला है। एग्जैक्टली दलित्स का है, जी बहुत सारे इंडिया में भी फॉल्ट लाइंस हैं, और इंडिया की भी कॉलोनियल लेगेसी कोई, यानी कि इतनी कोई मतलब वो भी काफी गहरी है, और वो आज तक उसके साथ डील कर रहे हैं। और आज जो जो हुक्मरानी जो कर रहे हैं और जो जमात कर रही है, वो बहुत सारे उन पुराने लेगेसीज को आप, वो जाहिर हो रही है ना कि वो ख़त्म नहीं हुई थी, वो चीज़ें अब नए अंदाज में, नई शक्ल में उभर रही हैं। So and again, this is partly actually I think that's another thing that I think is worth bearing in mind, कि पाकिस्तान की अपनी तारीख जरूर है, but I think we are at a cusp of history now, and Corona and all that's happening in the world today, I think forces us to confront this. That there's also Pakistan is also not we don't want to ourselves, क्योंकि रियासत खुद ये कहती है कि हम एक्सेप्शनल हैं, हम बिल्कुल कोई मुनफरिद हैं, नहीं, हम बहुत सारे मामलात में दूसरे मुल्कों की तरह भी हैं। आप देखें कि जो जो मैं कह रहा था ना कि कुकड़ बनाकर मजदूर को जलील करना सड़क पे, वो पाकिस्तान में हुआ तो हिंदुस्तान में भी हुआ, राइट। पाकिस्तान में भी लोग लॉकडाउन की वजह से भूखे मर रहे हैं तो हिंदुस्तान में भी मर रहे हैं। ऑथोरिटेरियन लिनिएजेस एंड लेगेसीज पाकिस्तान में भी है, हिंदुस्तान में भी है, कहीं पे ज्यादा हो, क्योंकि अफ्रीका में बहुत सारे मुल्कों में है, राइट। सो आई थिंक
this is a time for us to, yes, know our own history, think of it. Always been time for that. मतलब वो तो minimum है कि हम अपनी तारीख अपने मुल्क के, लेकिन I think this is a time to think in universal terms as well, to think about कि हर दुनिया के रियासत और दुनिया का निज़ाम और दुनिया की ये सरमायादारी और ये सब कुछ बहुत बेनकाब हुई है ना पिछले दिनों में, और होती रहती है वक्तन फवक्तन, लेकिन पिछले अरसे में तो बहुत हुई है. And that, in some ways, is a push for us to also develop, well, to look at our own weaknesses and to develop solidarities amongst the people who really are the, in some ways, जो society के अवाम हैं, जिनको हम कहते हैं कि मुल्क लोगों के लिए बनते हैं. तो ये एक आलमी मोमेंट भी है कि एक दुनिया भर के अंदर अवाम और ख़ास तौर पे मजलूम अवाम बहुत जलील हो रहे हैं इस वायरस की वजह से. कहने के लिए तो नारा लग रहा है ना, वी आर इन इट टुगेदर, बट the truth is no, we're not. I mean, the poorest and the weakest and the colored peoples in even Western societies, and हमारे यहाँ भी यही है कि सबसे ज्यादा जलील और मजलूम सबसे ज्यादा अब मजीद जलील होगा. So this is also a time for us to think about similarities across borders. I think, and I would like to suggest कि in a positive way, also recognizing कि बहुत सारी जगहों पे बहुत सारा जबर है, बट उस जबर का अपने मुल्क के अंदर भी मुकाबला करना पार्टली आई थिंक आस्क्स अस टू थिंक अबाउट पार्टली वो जो आज से 50-60 साल पहले तक एक इंटरनेशनलिस्ट स्पिरिट था कि दुनिया भर के मजलूम आज़ाद हो रहे थे ना नौआबादियात से. तो उस तरह का एक दौर, उस तरह की एक इमेजिनरी पॉलिटिक्स की आज उजागर करना मैं समझता हूँ काफ़ी ज़रूरी है. कमिंग बैक टू पाकिस्तान, आपने जिस तरह कहा था कि जो ये हेजेमनी है ये हाइड्रा की तरह है, तो जब तक इस तरह आप कह रहे हैं ग्लोबल वर्ल्ड में अवेंजर्स असेंबल नहीं होंगे उससे तो लड़ना मुश्किल होगा. अगर हम थोड़ी वजाहत कर सकें कि आपको क्या लगता है पर्टिकुलरली क्या क्या वेपन्स हैं, और एटलीस्ट सब अपनी कैपेसिटी में थोड़ा थोड़ा उनको थोड़ा थोड़ा ऐसा ऐसा डी वेपनाइज कर सकें. जिस तरह आ, हम बात करते हैं काउंटर नैरेटिव्स की, हम बात करते हैं ऑल्टरनेटिव मीडिया की, कि अगर एक तरफ मास मीडिया है जो हम सबको पता है कि किस तरह ऑपरेट करता है, तो हम एक ऑल्टरनेट मीडिया करके चलें, छोटा सा वहाँ एक काउंटर नैरेटिव काउंटर पॉइंट्स दें, हम यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाकर थोड़ी तारीख सही सिखाएं. तो इस तरह आपको क्या क्या लगता है, जैसा आपने कचेरी की भी काफ़ी बात की, कि क्या क्या वेपन्स हैं, और अपनी कैपेसिटी में जो यूथ अगर कोई सुन रहा है वो कहाँ कहाँ फोकस कर सकता है या थोड़ी अपनी अपनी बैटल कर सकता है? या एक तो फिजिकल मटेरियल वेपन्स है ना, मतलब फिजिकल उनसे तो लड़ना नामुमकिन है, एज एन एटलीस्ट बहुत मुश्किल है. Well, actually, yeah, that's what I was going to suggest. कि भाई वो physical weapons, and this is partly, I think, something that we need to. This is what I would say is the immediate thing that I would come to is कि we have to reject the politics of hate in all its manifestations. क्योंकि आजकल यही कहा जाता है ना, मतलब इसलिए जो आप हुक्मरान देखते हैं, मतलब बात हमने पीटीआई से भी शुरू की थी ना, यही था ना कि वो बुरा और हम अच्छे, वो करप्ट हम अच्छे, राइट. So it was constantly a negation of कि भाई ये फजूल है. And I think that this also speaks to Pakistan's history at large. भी सब कुछ पाकिस्तान में कुछ मसला होता है तो कोई ना कोई साजिश होगी बाहर से, हिंदुस्तान या अफगानिस्तान से, राइट. तो this is always a hating there's always an other, someone else to blame. And what I just said earlier is that, well, partly you asked about means. Through all the means we have at our disposal, to propagate an idea, a narrative that is not about hate, that is about universalism, that is about joining in solidarity, that is about saying कि अगर स्टेट हमें लड़ाते हैं तो हम दोस्ती करना चाहते हैं. अगर स्टेट कहती है कि and this reflects in different ways. अगर स्टेट कहती है कि हमें बॉम्ब तोप चाहिए, नहीं, हमें किताबें और अस्पताल चाहिए, right? And this is something that can guide our action. That's, for instance, why I think पिछले अरसे में जो पाकिस्तान में सबसे एक वाइब्रेंट पॉलिटिकल मूवमेंट चली है पीटीएम की, वो because it talked about non-violence, because it challenged the whole language of a politics कि आपने हमारे हाथ में गन पकड़ाया, आपने हमें कहा कि जाकर काफिर को मारे, नहीं, हम किसी को नहीं मारेंगे, हम आपको भी नहीं मारेंगे. Actually, Paulo Freire very long ago had this very powerful concept. It's very hard कि जो oppressed है
वो अब सिर्फ अपने लिए नहीं लड़ता, वो इवन ओप्रेसर को एक तरह से लिबरेट कर रहा है। ये जो बाइनरी है कि मैं ओप्रेस्ड हूं ना, तो मैं, अगर मेरी इमेजिनरी ओप्रेशन को चैलेंज की सिर्फ करने की ये है कि मैं ओप्रेसर को रिप्लेस करूं, तो ये तो बड़ा गंभीरता है ना। मिसाल के तौर पे मैं बेजमीन किसान हूं और मेरे सर पे ऊपर जागीरदार सर पे सवार है सदियों से, तो मेरा मकसद अगर ऑपरेशन से आज़ाद होने का ये कि जी मैं ज़मीन का मालिक हो जाऊं, यू फॉलो, this will just be, reproducing. So I think that one I would say is this is sort of the tone and the tenor and the message, and it's a universal and it's a simple message. But in a time where hate and fear, very simple but very visceral emotions, are being evoked to divide, I think we need a simple message to unite. Now, I don't want to suggest in a very naive way. No, to unite means to also acknowledge our differences, right? To acknowledge कि डिफरेंस है, और ये कहना आसान है कि आप यूनाइट करेंगे, लेकिन जैसे कल परसों इस्लामाबाद में हुआ, आप कह रहे हैं सबको घर में रहें और आप कच्ची आबादियों पे बुलडोजर फेर रहे हैं। तो साफ जाहिर है जब ऐसे वाकयात होंगे, जब लोगों पे चढ़ाइयाँ होंगी, लोग गायब होंगे, तो दैट नेसेसरली ट्रिगर्स अ रिएक्टिवनेस, अ हेट, कि आप ओप्रेसर इतना आप पर जुल्म कर रहे हैं कि आप भी उसको एक तरह से हेट की जबान में. But I think this is our challenge. It has always been our challenge, and it will continue to be our challenge. And जहाँ तक रसाई और ज़राए की बात है, I think what I would say immediately is कि मैं ये महसूस करता हूँ, बड़े अरसे से महसूस करता आ रहा हूँ कि अगर आप इवन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को देखें ना, जो हमारे हमारे पास एक जरिया है चैलेंज करने का, उसमें भी आप देखें सुबह शाम जो अपने आप को तरक्की पसंद करते हैं एक दूसरे की टांगे खींच रहे होते हैं सुबह शाम. हम्म। ये होता है ना, ये आपने भी महसूस किया होगा. तो कम से कम और नहीं तो ये वाला काम तो छोड़ दें. मसलन ये तो जरूरी है कि हम इसमें इसका मुकाबला करें कि मैं ज्यादा मजलूम हूं या तुम ज्यादा मजलूम हो, दोनों मजलूम हैं, मैं अपने हिसाब से हूँगा, तुम अपने हिसाब से होगे, लेकिन जुल्म करने वाला निजाम ही तो खत्म करना हम दोनों का मकसद है कि नहीं. दैट्स आई थिंक देयर हैज टू बी सम closing of ranks, I think, as a principle, and a use of language that is not so divisive amongst ourselves, at least. फिर ही आप किसी और को भी अप्रोच करेंगे, वरना वही आप अपने एको चेम्बर्स में फंसे रहेंगे, एक दूसरे पर अपना नुक्ता नजर हावी करने की कोशिश करते रहेंगे, एंड दैट ऑफ कोर्स इज अ विक्ट्री फॉर द सिस्टम इटसेल्फ. आपने अभी जो बात की क्रिटिकलिटी ऑफ द लेफ्ट की विद इन द लेफ्ट एज वेल, ये तो आई एग्री विद के राइट एटलीस्ट यूनाइटेड ज़्यादा होता है. वो अपने डिफरेंसेस भूल जाएंगे. अगर उनको किसी को अटैक करना है लेफ्ट पे तो फिर वो पब्लिक एनिमी नंबर 1 है. वो सारे इकट्ठा हो जाएंगे. वेयर एज द लेफ्ट does not unite like that. एक I think maybe it's inherent कि if you're on the left you're already thinking critically or you have a bigger social conscience, तो आपको थोड़ी भी fault line नज़र आती हैं तो you're quick to dissociate yourself from that. पर on the flip side ज़रूरी भी तो है कि within your own ranks की जिस तरह आप बात कर रहे हैं कि unity से के अलावा भी जिस तरह I think Sonia and Sadia also did a discussion AWP में about sexism within the left. Sure. तो ये डिस्कशंस भी कितने ज़रूरी हैं? नहीं, I said earlier, I think that what I'm saying is difficult. What I'm saying is our premise is that there is difference. Our premise is that we are not all the same. Our premise is that some are more privileged. When that's on class lines, that's along ethnic lines, that's along gendered lines. There's no getting away from it. मतलब ये तो हो नहीं सकता ना कि हम इससे इनकारी हो जाएं. मतलब हम उस वाले इस परचम के साए तले सब एक हैं वाली बात मैं नहीं कर रहा, जो सरकारी होती है कि बस भूल जाओ कि कोई मसला ही नहीं मसले हैं, मसले बड़े गहरे हैं. लेकिन तारीख को पढ़ने का ये भी तो एक फ़ायदा होता है ना कि आपको ये समझ आता है कि differences are created and reproduced through these systems of oppression, and part of that reproduction of that difference is to put it simply, जैसे अंग्रेज दौर के बारे में कहा जाता है कि डिवाइड एंड रूल. ठीक है कि नहीं? तो ये तो सवाल नहीं है कि हम कोई नाइव एक तर्ज पर इस तरह की चीज करें. मैं तो सिर्फ मतलब, एंड दिस इज अ चॉइस, दिस इज आल्सो, आई मीन हम एक डिस्कशन कर रहे हैं ना, आपके सुनने वाले भी सुनेंगे और फैसला करेंगे. मैं ये कह रहा हूँ कि आज का जो जो जिस जिस जगह पे हम खड़े हैं, जिस मरले पे हम खड़े हैं, वो बहरहाल एक झटका तो दे रही है ना इंसान को.
चाहे वो जिस तरह भी सोचता हो किसी भी चीज़ के बारे में, चाहे उसके पहले से एस्टैब्लिश्ड आइडियाज क्रिटिकल ही सही क्या है. And I'm just saying to add sort of another step to what we already know about how difference is generated, about privilege, about all of the things that we know, without insisting it has to be either or. So I'm not saying कि हम बस भूल जाएं और बस एक नारा लगाएं और बस बिल्कुल we'll walk off into the sunset. नहीं, ये लड़ाई लंबी है, ये लड़ाई चलती रहेगी, ये तवील लड़ाई है समाज के अंदर अमन, बराबरी, रवादारी को कायम करने की, पैट्रियार्की को क्रश करने की, इंपीरियलिज्म को क्रश करने की, क्लास प्रिविलेज को ख़त्म करने की. ये कोई हमारी मर्जी या ख्वाहिश के मुताबिक तो कल नहीं ख़त्म होंगी चीज़ें. I'm just offering a window into which to think about these questions that I think in the long run um, ultimately lead us in a possibly better direction. I could be wrong and I'm happy to be proven wrong. My concern is not that I'm right or wrong. My concern is that we think about these questions with the objective of taking our struggle forward. आइडियल वर्ल्ड में तो इंशाल्लाह ऐसा ही होगा, बट फ्रॉम अ रियलिस्ट पर्सपेक्टिव आप कैसे देख रहे हैं कि व्हाट डू मे बी लेट्स मे बी एक डिवॉइड ऑफ कोरोना, बिकॉज कोरोना के बाद तो किसी को नहीं पता कि अगले महीने क्या होगा, लेट अलोन द नेक्स्ट फ्यू इयर्स. बट इन टर्म्स ऑफ स्टेट कंट्रोल या स्टेट स्ट्रक्चर, डू यू सी एनीथिंग चेंजिंग इन पाकिस्तान एनी टाइम सून? Um, it probably, I don't want to be the bearer of bad news, but I think that that's partly what we do. We recognize what we're confronted with, even while we imagine a better future. I think what's happening now, Corona ki wajah se, not because of Corona or the virus itself, I think that will portend quite difficult times ahead. More authoritarian times, more unequal times, potentially more of this hateful politics that we've been discussing. Pakistan ke tanazur mein more of the same, but perhaps in more acute ways. Um, and that's partly, I think it's in imagining that dystopic outcome कि हम फिर हमारे लिए एक urgency होती है कि हम फिर कोई uniting एक sort of minimum common denominator को भी सोचे. So I don't think that it's going to get better quickly, or at least in the larger canvas. At the same time, यही मौके होते हैं जब आप देखते हैं कि लोग किस यानी कि लगन से रियासत कुछ कर रही हो ना कर रही हो, लेकिन इस वक्त आम लोग कुछ करने की कोशिश तो कर रहे हैं ना, मतलब जो थोड़ा बहुत कुछ कर सकते हैं. That shows there is a universal consciousness of being a human out there amongst a lot of people who जिनको शायद कोई सियासत की बहुत ज़्यादा समझ ना भी आ रही हो या अमूमन उससे दूर रहते हैं, लेकिन कुछ दर्द तो रखते हैं ना. तो इसलिए I think it will take time, and there's, as I said, a hydra-headed elite, and it's very long and it's very big. Its history is long, and the challenge is big. So it could get worse, but I think it's worth thinking about the fact that it could get worse, and that might bring more of us together to build a different imaginary of politics, a different common sense, a new common sense, right? A common sense that is universal and that is not based on hate, and that, as I said, acknowledges that we are different, yet that is based on the principle that we can create an egalitarian, a free society for everyone. It could get worse, but could it have ever been better? कोई है एक ऐसा fork in the road? I'm sure there are many, but अगर आपको एक magical one butterfly effect दिया जाए कि यार history में जाके पाकिस्तान आप एक चीज़ change कर लें, is there any particular fork in the road that you think अगर हम दूसरी तरफ चले जाते तो things might have been better? Look, I think I don't want to romanticize it, लेकिन साफ ज़ाहिर है जब पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख में इंतखाबात हुए, and that's important to bear in mind, 23 साल बाद इंतखाबात हुए, तो एक वाज़े मैंडेट था, और उस मैंडेट के मुताबिक अगर इक़्तिदार हवाले किया जाता तो क्या होता मुझे नहीं पता, लेकिन फ़र्क होता. चलो अगर वो न सही, अगर मुजीब को हुकूमत नहीं भी दी गई, मुल्क टूट गया, तो उसके बाद भी एक मैंडेट था जब 73 का कॉन्स्टिट्यूशन पर दस्तखत हुआ, दो मुंतखब मतलब
दो बड़ी पार्टियां थी, नेशनल अवामी पार्टी और पीपल्स पार्टी, जिन जो दो दो सूबों में इक़्तिदार में थी. And that consensus also, unfortunately, particularly with the 73 military operation in Balochistan, fragmented. And and then, there were other forms of repression that happened, मजदूरों पे कराची में और किसानों पे, जो मतलब एक पीपल्स पावर का तस्वर था. But at the same time, I'll also, again, partly so that students of history bear in mind कि हम exceptional ना हो. ये पूरी दुनिया में आप देखते हैं कि प्रो पीपल फोर्सेस की पसपाई हुई, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं. आप अंग्रेज मुल्कों में देखें, थैचर से लेकर रेगन तक, फिर चिले में देखें पिनोशे, everywhere the left and popular forces had a decline. So maybe it wouldn't have been all that different after all anyway. But I do know that common sense that existed then, right? That is what I would like to rehabilitate, and that is what I think is important to remind oneself of. कि जो हमें लगता है ना कि आज की दुनिया में यही मुमकिन है, नहीं. मुमकिनात क्या होते हैं इंसान के नफ्सियात में और मजमूई तौर पर समाज के अंदर, वो बदलते रहते हैं. आज जो हमें मुमकिन नहीं लग रहा, कल वो शायद मुमकिन होगा. और उस दौर की तारीख को पढ़ने के 60s और 70s का फ़ायदा ये है कि हमें अंदाज़ा होता है कि उस वक्त के लोग, आम लोग, पढ़े लिखे हों चाहे ना पढ़े, अनपढ़ हों, वो एक शेयर करते थे एक तस्वर कि एक हम इस पूरे निज़ाम को, इस दुनिया को, आलम इंसानियत को एक और तरह से चला सकते हैं. एंड maybe out of what we are experiencing today, we will be able to forge a similar imaginary. इंशाल्लाह बिल्कुल ऐसा ही होगा. आई जस्ट वांट टू एंड विद वन पर्सनल क्वेश्चन. मैं पढ़ रहा था, वैसे एक्चुअली मेरे दो पर्सनल क्वेश्चन हैं. के अजीज़ की किताब पढ़ रहा था मैं, मर्डर ऑफ हिस्ट्री. उसमें आई ऑलवेज अंडरस्टैंड कि अगर आप अयूब खान को डेकेड ऑफ प्रोग्रेस और आप हर सिविलियन गवर्नमेंट को करप्शन वर्स्ट पीपल इन द वर्ल्ड की तरह पढ़ाए जाएंगे, आई गेट ऑल ऑफ दैट. आई गेट कि आप कायदे आज़म को पेंट कर रहे हैं सम सुपर रिलीजियस मौलवी साहब. आई अंडरस्टैंड कि ये किस तरह नेशनल नैरेटिव के फेवर में है. बट जो सेमेंटिक वाइट वॉशिंग होती है वो मुझे नहीं समझ में आता कि आप 23 मार्च का जो रेजोल्यूशन है वो 23 मार्च को भी नहीं पास हुआ था. तो आप लाइक आर दे जस्ट सो यूज्ड टू चेंजिंग हिस्ट्री नाउ दैट देयर लाइक नहीं, डेट भी अपनी मर्जी से चेंज कर दो, लाहौर रेजोल्यूशन का नाम पाकिस्तान रेजोल्यूशन रख दो, उसमें से एक लफ्ज़ चेंज कर दो. ये सेमेंटिक्स भी क्यों हम चेंज करते रहते हैं फॉर नो रीज़न? लाइक आई डोंट गेट द पर्पस ऑफ चेंजिंग द डेट व्हेन इट वाज नॉट द डेट. Well, I mean, that particular example is वो एक मखसूस चीज़ है, but these are not small matters. अगर आप लाहौर के बजाय पाकिस्तान लिख लेते हैं तो ये बुनियादी बात है. आप डेट्स की भी आगे पीछे हेर पेर कर लें तो ये बुनियादी बात है. ये सिर्फ सेमेंटिक्स नहीं है, ये मानी रखती हैं ये चीज़ें. सो आई मीन इट गोज बैक टू व्हाट वी वर सेइंग कि भी ये होता है. के अजीज़ की मतलब समझदार लोग भी कर सकते हैं. ये ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ एक ही तरह की वजह से होती है. वी ऑल मेक मिस्टेक्स, समटाइम्स इनोसेंटली, समटाइम्स लेस सो. But these things happen, and I think without it becoming a question of सही गलत, अगर कोई इनकरेक्ट फैक्ट्स हैं तारीख में तो वो करेक्ट होने चाहिए. और वो दैट्स पार्टली वन ऑफ द गुड थिंग्स अबाउट why history is a living thing, because you always improve on what's come before. You get more information, new information, more accurate information that disproves earlier inaccuracies. सो दूसरा मेरा पर्सनल सवाल ये, गोइंग बैक टू दैट डे एट लम्स, आपने एक नज़म सुनाई थी कि ना तेरा पाकिस्तान है ना मेरा पाकिस्तान है, ये उसका पाकिस्तान है जो सदर पाकिस्तान है. तो इस वक्त तो आरिफ अलवी हैं, उनके तो मेरे ख्याल से घर में कोई नहीं सुनता. तो आप रिवाइज करना चाहेंगे कि ये उसका पाकिस्तान नहीं है जो सदर पाकिस्तान है? जो सदर पाकिस्तान है और जो उस वक्त सबसे बड़ा बेईमान है, ये भी अगली लाइन भी सुना देते. आरिफ अलवी साहब का तो खैर मैं नहीं कह सकता कि उनका पाकिस्तान है. पाकिस्तान जो जिनका है और जिस एस्टेब्लिशमेंट का है, वो मैं और we all know this to be true. Obviously this was a time of movements, and movements के नारे होते हैं. मुशर्रफ फिगर हेड था, बट मुशर्रफ की बात नहीं थी. मुशर्रफ को निकालना सवाल था उस वक्त या नहीं. हमारे लिए तो हमेशा इदारे को
इस्टेब्लिशमेंट को डिस्प्लेस करना सवाल होता है. सो ये किसी एक फ़र्द का तो नहीं है. ये एक निज़ाम हुकूमत है, एक समाज है. एंड आई वुड लाइक टू बिलीव के एक कहीं आगे जाकर कोई ऐसा हम एक नेशन स्टेट का तस्वर बना सकते हैं जो कि एक्सक्लूशनरी ना हो, जो किसी एक इदारे का ना हो, जो मिलिट्रिस्टिक ना हो, जो किसी मतलब आप देखें ना अभी भी हमारे किताबों में कि छोटी उम्र के बच्चे मसीह हैं वो जाकर पढ़ते हैं कि हर अच्छा पाकिस्तानी मुसलमान है. तो ये तो बहुत ही जुल्म वाली बात है ना. तो ये हम नेशन स्टेट के बियॉन्ड नहीं सोच सकते दुनिया को. आई मीन that's नेशन what I was स्टेट saying. भी. Yeah, that's what I was saying, right? It's time to think of us as in terms of universal subjects. And I जी. think आज जितना इसका इम्कान है, अगर आज से 50-60 साल पहले लोग सोच सकते हैं कि दुनिया के तमाम कौमें आज़ाद हों और तमाम अवाम आज़ाद हों, और उस आज हमारे पास जो टेक्नोलॉजिकल ज़राए हैं एक दूसरे से बात करने की, कनेक्ट करने की और समझने की, तो वो बहुत ज़्यादा हैं आज से 50-60 साल पहले के मुकाबले में. तो आई थिंक we can, and that's what I'm trying to say. So for me, a country, a nation state that acknowledges that in fact there are multiple nations that live within it and multiple nations outside of its borders, and we want all of them to be free. Absolutely. I hope people who are listening are inspired and get on their own tracks. जो अगर आपकी बातें सुन के थोड़ा मुतासर हुआ है and wants to get some reading done, आप कोई एक दो writers या कोई 2-3 किताबें recommend करना चाहेंगे उनको just to deepen their understanding? Sure. I mean, again, not just purely Pakistan specific. I would always say that people should read A People's History of the United States by Howard Zinn, just so we understand, how history always has two very different sides. वो ज़रूर पढ़ें. वो आसान किताब है, खूबसूरत किताब है, और शायद थोड़ा बहुत हमें अपने बारे में भी समझने का मौका मिलेगा. और पाकिस्तान के हवाले से I would say that maybe people who are interested, who want to, who are willing to think about it and are willing to think about that imaginary that I was talking about can read Kamran Astar Ali's book called Surkh Salam. तो आई थिंक काफ़ी रिसेंटली आई है. विद इन आई थिंक द लास्ट 2-3 years आई थिंक कामरान साहब की किताब आई है. I think it's अब 3-4 साल पुरानी. But what's interesting about it just tells us कि पाकिस्तान के बनते वक्त भी हमारे जैसे लोग, हमारे नज़रिए के लोग उस वक्त भी ना गद्दार थे, ना कोई दुश्मनी की बात करते थे. वो एक मुतबादल समाज और हुक्मरानी के निज़ाम की बात ज़रूर करते थे. और शायद आज पहले के मुकाबले में नौजवान इस चीज़ को ज़्यादा बेहतर समझ सकते हैं. Hopefully sir, for all the work that you've done, thank you so much. इंशाल्लाह एक अवेकनिंग आएगी और लोगों की समझ और शऊर में इंक्रीज होगा. अल्लाह करे कि एक दिन एक बेहतर पाकिस्तान हम देख सकें. थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर थॉट्स सर. कोई आप अगर पार्टिंग वर्ड्स देना चाहें तो. No, I mean, I would just actually like to congratulate you and those like yourself, who are doing what they can in their way. And as I said, close ranks, whoever is doing what they can, try and find ways in which we can do this together. We can organize, we can wear the badge. बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो गए तो मेरी जमात को ज्वाइन भी कर लें, ये सबसे अच्छा होगा. लेकिन ना भी हो और आप हमारे दोस्त होंगे तो हम मिलकर कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह पे मिलकर जद्दोजहद ज़रूर करेंगे. And that's what we should look for ways in which we can acknowledge our differences but come together to build a bigger coalition that can actually make big change possible. आई थिंक हमने जिक्र नहीं किया वैसे. अवामी वर्कर्स पार्टी इज द जमात. आप प्लीज, इज देयर अ वेबसाइट दैट दे कैन गो टू? There is, yes. It's called awamiworkers.org, and I believe you just had in a recent podcast our very vibrant and brilliant Punjab president of our party, Amar Rashid, on your show. So your listeners are familiar with our ideas and the people who we think are equipped to lead this country and its young generation to a better future. So look at अमार रशीद से आप गाने गवाकर यूथ को अपनी तरफ माइल कर रहे हैं, because his voice is enough to be the Pied Piper of a generation.
Yeah, no, I mean, I'm happy to follow his lead, so maybe others will too. Thank you so much, sir. Thank you so much. It was a lovely discussion. More power to you. Thank you so much for coming on. And thank you, everybody, for listening. Take care. Thank you. Allah Hafiz.